Hello, Assalamu alaikum everyone and welcome to the show Coffee with CEO with Zeeshan Hasib, who is the General Manager Pakistan for Syngenta. ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा। हाँ. By the way, there is a lot in his feather. He is a LUMS grad and he has worked in 20 countries, 20 MENA countries. Worked with Deloitte, worked with Karim and now working with Syngenta. कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। And apart, he is having so many courses from Harvard and other international universities. Why don't you name your universities from where you have taken certification other than LUMS? So degree wise, so I'm an engineer. Okay. I did my engineering from FAST Lahore. फिर उसके बाद did my MBA from LUMS. और उसके बाद फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की हार्वर्ड से भी की, INSEAD की भी सर्टिफिकेशंस थी. Okay. But primarily from FAST and LUMS. So you work in 20 countries. घूमने नहीं गए थे, काम करके आए हैं. So why, मतलब it's such a big thing. लोग 2, 4, 6 में काम करते हैं. You worked in 20. Elaborated. कहाँ काम किया? 2012 में when I did my MBA. So MBA के बाद सबकी ख्वाहिश होती है कि कंसल्टिंग में जाना है. So management consulting में. So I ended up with a company called Deloitte. आपने mention किया उसका, in their Middle East office. और as a consultant, you're never based in one country. You're traveling. They lock you. And you do a lot of projects in different countries. So उस चक्कर में फिर I traveled a lot of countries. I worked in a lot of countries. और personally भी ऐसे भी शौक था तो घूमने फिरने भी काफी countries में गए. So now let's talk about Syngenta. A big global company it is, acquired by the Chinese company. जी. Chen China. And apart, मैंने तो जो उसका turnover पढ़ा, that was $16.7 billion, man. ये वाकई ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल Syngenta जो है it's one of the biggest multinationals in the world. Agriculture input में especially crop protection जिसे कहते हैं, उसमें Syngenta is globally number one. इसी तरह इनका सीड्स का भी बिजनेस है. सीड में भी Syngenta is amongst the top few players. Just to give you an example, आपको शायद Syngenta का पता ना हो नाम, लेकिन every day you get a flavor of Syngenta at your meal because every fourth tomato across the world is Syngenta tomato. So I'm pretty sure. So all the gravies and all the salad that we are eating is by Syngenta, ना? So there's a seed business and then there's a crop protection business. Crop protection बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे इंसानों के लिए medicines हैं. So plants के लिए, plants are also living beings. So plants के लिए crop protection. Why Syngenta is so new for us? मतलब कुछ नया सा लगता है. Such a big multinational, but why we, the Pakistani corporate, are not very aware of Syngenta? अच्छा जी, Syngenta has a long history. Okay. So earlier Syngenta used to be called Siba Gaigi, and every single Siba Gaigi हो गया. Pakistan would actually know कि Siba Gaigi क्या है. बहुत फेमस प्रोडक्ट्स भी. फिर उसके बाद इट वेंट थ्रू डिफरेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन. नोवार्टिस इज आल्सो फ्रॉम द सेम ग्रुप. बाद में नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल अलग हो गई एंड एग्रीकल्चर जो है वो फिर इट टर्न्ड इनटू Syngenta. सो दैट्स व्हाई पीपल आर मोर फेमिलियर विद जो पुराना नाम था Siba Gaigi, बट Syngenta से ज्यादा फेमिलियर नहीं है. बट नाउ as things are picking up, so people will know what. Tell us more about Syngenta in Pakistan. How many employees in portfolio, offices, all together? So Pakistan में जैसा मैंने बताया हमारे 3 business verticals हैं. So there's crop protection, there's field crop seeds जिसमें primarily corn and rice का भी we are planning for rice as well, and then vegetable seeds. उसमें हमारे watermelon है, उसमें हमारे tomatoes हैं और many other seeds as well. So ये 3 business verticals हैं. In terms of offices, we have 3 main offices. Head office in Karachi, there's an office in Lahore, and then there's an office in Multan. Okay. We have around 6 warehouses. So Sindh में भी हैं, एक रहीम यार खान में पंजाब में है, मुल्तान में है. We have it in Lahore, KPK में है, and then हैदराबाद and Karachi में भी है. We also have a manufacturing plant जहाँ पे जितने भी active ingredients आते हैं उनकी formulation होती है. And we so you produce and then distribute? बिल्कुल. So कुछ import तो नहीं करते ना? नहीं, import करते हैं. So raw material जो होता है ना सारा imported होता है. ठीक है. वो आपके Syngenta ही से आता है? बिल्कुल, Syngenta की different sources से आता है. हमारी different allotted sources. Exactly, different source procurement sources है. वहाँ से active ingredient आता है, raw material.
फॉर्मुलेट होता है पाकिस्तान में एंड देन आगे हम फिर सेल करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि फॉर्मुलेटेड भी आते हैं, बट बल्क ऑफ आवर मेजॉरिटी ऑफ आवर इज डन बाय यू। दिस इज फॉर्मुलेटेड इन। डू यू सेंड योर प्रोडक्ट्स टू सम अदर कंट्रीज एज वेल? क्या आपका कोई प्रोडक्ट भी बाहर जाता है? सिंजेंटा का एज अ ग्रुप तो जाहिर है, यस, नो बट सिंजेंटा पाकिस्तान इज नॉट एज सच। सो अभी पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट। एग्रीकल्चर इज 22% ऑफ योर जीडीपी, सो इधर ही डिमांड मीट नहीं होती, तो फिर हम बाहर कैसे नहीं, अपार्ट यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन फुलफिलिंग दिस डिमांड। छोटे ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं फॉर सम अफ्रीकन कंट्रीज, बट देयर इज नो फोकस रियली ऑन। बट इज दिस डन इन रीसेंट टाइम? नहीं, ये पुरानी बात है, because your focus is on the industry right now. Now when we talk about Syngenta, when we talk about this fertilizer wala scene, so the next thing is sustainability. And I have seen that sustainability is the number one motto for Syngenta as well. जबकि when we look into the local fertilizers, सबसे बड़ा जो वो नुकसान करते हैं वो शायद हमारे इसी चीज को करते हैं, that they don't take care of the environment and planet. Please elaborate Syngenta in sustainability. देखिए जी, so बड़ा सीधी बात है. So if you have to pick one big problem in mankind, that's climate. Right? So climate change one is such a big problem. So इसलिए I think making sure कि हमारे जितने भी resources हैं, we are very careful with those resources. चाहे वो पानी है, चाहे वो soil है, soil की condition वगैरह. So this is all basically sustainability. So making sure कि हमारी जितनी भी practices हैं, जितने भी products हैं, those are actually safe products and safe practices, so that आप ये अपने resources हैं इनको conserve कर सकें. जो क्लाइमेट की वजह से भी डिप्लीट हो रहे हैं और ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस की वजह से डिप्लीट हो रहे हैं. सो हमारे केस में वी हैव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी. वी हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स. सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ अर्सा पहले जो भी हमने किया है वो हमने लॉन्च भी किया है, सस्टेनेबल राइस के ऊपर किया है. सो पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर. सो उसमें होता ही है कि वी हैव अ होल प्रोटोकॉल जिसमें हम बताते हैं कि जी सॉइल मैनेजमेंट किस तरह करनी है, सॉइल हेल्थ वाइज इट इंपॉर्टेंट और क्या क्या करना है, वाटर मैनेजमेंट किस तरह होगी, कैसे पानी को कंजर्व करें, एंड देन थ्रू आउट द प्रोग्राम डिफरेंट स्टेजेस हैं जहाँ पे हम वी मॉनिटर द क्रॉप एंड इवेंचुअली द होल ऑब्जेक्टिव इज कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की यील्ड प्रोड्यूस हो व्हाइल मेकिंग श्योर कि आपने सॉइल का ख्याल रखा है, रिसोर्सेज का ख्याल रखा है, जितने भी वाटर है, उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो आर ऑफ हाई क्वालिटी एज वेल. सो वी हैव डेवलप्ड इवन आपका वेस्टेज जो होता है, even वेस्ट को किस तरह हैंडल करना है. सो देयर इज अ प्रॉपर SOP फॉर दैट एज वेल. सो यू डू गिव ट्रेनिंग टू योर फार्मर्स एंड अदर रिलेटेड पीपल. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द मेन मिशन एंड विजन ऑफ Syngenta? देखिए, सो मेन मिशन ऑफ Syngenta इज रियली एनेबलिंग द फार्मर्स टू क्रिएट अ फ्यूचर. अगर सैडली हम देखें, हमारी तकरीबन 43% जो आबादी है ना वो लिंक्ड है एग्रीकल्चर से, और पाकिस्तान का GDP है तकरीबन $1,000 होगा, 1,000 से स्लाइटली ऊपर. इसका मतलब है कि आपकी इतनी बड़ी वर्कफोर्स पैसे नहीं कमा रही या उनके बहुत बुरे हालात हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइंस है. दैट्स वाई आपका पर कैपिटा इनकम इतनी कम है. सो दैट्स वाई मेकिंग श्योर कि फार्मर्स को हमने एनेबल करना है सो दैट दे कैन स्टार्ट मेकिंग मनी एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान ग्रो करेगा. सो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ अपनी यील्ड 30% इंप्रूव कर रहा है. 30% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया से अगर आप कंपेयर करें, इंडिया हमारा नेबर है, उससे डिफरेंट क्रॉप्स में कंपेयर करें तो वी आर एटलीस्ट प्रोड्यूसिंग 25 to 30% लेस यील्ड. सो आउटपुट से कम देन इंडिया. सो हम सिर्फ 30% ऊपर कर दें, यील्ड हमारी बेहतर हो जाए 30%. इट एक्चुअली मीन्स तकरीबन $90 बिलियन हम ऐड कर रहे होंगे अपनी जीडीपी में. Such a big sector. But do Syngenta do something for spreading awareness of all this? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो आई थिंक इसके ऊपर अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारे काम होता है. सो 2-3 चीज़ें हैं. सो अगर हम एक तो हमारा कोर बिजनेस है विच इज़ प्राइमरली सीड्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन. वी केम अप विद न्यू स्ट्रैटेजीज को हम कहते हैं न्यू फार्मिंग इकोसिस्टम. सो द होल आइडिया जैसा हमने मिशन बताया कि जी फार्मर हमारे सेंटर में है. इफ फार्मर इज हैप्पी, everybody is there. So how do we make them happy? उसके लिए हमने बड़ी सर्विसेज लॉन्च की हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि फार्मर की जिंदगी में बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं. उसने उधार कहाँ से लेना है, लिक्विडिटी के चैलेंजेस होते हैं, बारिश ज़्यादा होगी, क्लाइमेट के मसले हुए, क्लाइमेट मेजर, सो दे नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस. उसके ऊपर हमने काम किया है. पीक जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है, लेबर नहीं मिलती, तो स्प्रेइंग, ड्रोन स्प्रेइंग के ऊपर हमने लॉन्च्ड अ पायलट जो हमने भी सक्सेसफुली किया है. टिपिकली अगर किसी को पेस्टिसाइड लेने जाना है तो एज हाई एज 25 किलोमीटर दे हैव टू ट्रैवल एंड गेट अ बॉटल ऑफ पेस्टिसाइड. राइट. सो हमने उसके लिए कुछ जगह पायलट किया है कि ई-कॉमर्स का पायलट किया है. सो दीस आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड जो हमने फार्मर्स के लिए किए हैं, बट आई थिंक इधर बहुत कुछ है. सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. कंपटीशन इन पाकिस्तानी मार्केट. आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोकल फर्टिलाइजर्स भी हैं, मल्टीनेशनल भी हैं.
तो कैसा कंपटीशन है? सो आई थिंक इंडस्ट्री इस तरह है, अगर एग्रीकल्चर इनपुट की देखें ना, प्राइमरली फर्टिलाइजर इज सेपरेट, सो वी डोंट डू फर्टिलाइजर्स, वी हैव पेस्टिसाइड्स. ठीक है. सो पेस्टिसाइड्स में दो तरह की कैटेगरीज हैं. देयर आर मल्टीनेशनल्स एंड देन देयर आर लोकल. मल्टीनेशनल में सिंजेंटा इज द मार्केट लीडर, फॉलोड बाय अदर प्लेयर्स एज वेल, जैसे एफएमसी है, बेयर है, आई थिंक कॉटेवा भी है. सो ये मल्टीनेशनल्स है. एंड देन लोकल प्लेयर में द न्यू लोकल ग्रुप्स, सो तारा हो गया, अलीपुर हो गया, सो दीज आर ऑल द ग्रुप्स. सो इस तरह मार्केट है. सिंजेंटा का ये है कि वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर क्वालिटी. प्राइसिंग वाइज वी आर बिट प्रीमियम, बट यू नो एवरीबडी, अगर आप कभी रूरल एरियाज में जाए सिंजेंटा का पूछेंगे तो द फर्स्ट थिंग दे विल से इज क्वालिटी. अच्छा, डेफिनेटली अगर आपकी क्रॉप अच्छी निकली, टाइम पे निकली, क्वालिटी अच्छी निकली, देन यू कैन सेल इट एट गुड प्राइस टू. और उसको शायद कैरी करना भी आसान, ये सब कुछ भी, क्योंकि क्रॉप तो वरना बड़ी जल्दी खराब हो जाती है अगर वो अच्छे प्रोसेस से ना निकली. ओके, नाउ यू टेल मी, वेयर डू यू सी सिंजेंटा 5 years down the road in Pakistan? अच्छा, in Pakistan I see Syngenta not only selling crop protection and not only selling crop protection and seeds, but also offering a lot of other services जो फार्मर के लिए एक नीड है. So for example lending, and we might not do it ourselves, हम पार्टनर करेंगे lending के ऊपर कि उनको उधार कैसे मिल सके, जिससे वो जो अच्छी चीज खरीद के अच्छी क्रॉप यील्ड कर सकें. स्प्रेइंग के ऊपर कि किस तरह स्प्रे कर सकते हैं. ई-कॉमर्स के ऊपर भी वर्किंग करेंगे. So 5 years down the road, Syngenta will be a player where farmer will get an end-to-end solution. So if a farmer, it's a one-window solution for farmers. There will be a one-window solution for farmer. For example, farmer अगर हमारी किसी फ्रेंचाइज विजिट करेगा, ना सिर्फ वो सीड ले सकेगा, ना सिर्फ क्रॉप प्रोटेक्शन ले सकेगा, बल्कि रिलेटेड सारी सर्विसेज जो जिसको जरूरत होती है वो ले सकेगा. What's your stance on women empowerment? And how is Syngenta contributing towards diversity and inclusion? बिल्कुल. So I think देखें, किसी भी नेशन के लिए ना inclusion is the most important thing. Yes, it is. दो segments की inclusion के बगैर तरक्की नहीं हो सकती किसी मुल्क में भी, किसी organization में. One is youth and second is your female. Yes. Right. So that's why I think this is such an important topic for our country to think about. And Syngenta will be, it's a priority for us. We are doing a lot of things on diversity and inclusion. कुछ projects मैं आपको बताता हूँ. So for example, I'm proud to announce कि मेरी लीडरशिप टीम में ऑलमोस्ट 20% आर फीमेल. बड़ी बात है. ऑन बोर्ड सो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इज नॉट यूजुअली इन द नॉर्म. उसके अलावा वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इंटरनली. हमने एक लीनियन सर्कल भी बनाया हुआ है जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स कनेक्ट टुगेदर, शेयर देयर इश्यूज, एंड देन दोज इश्यूज कम टू मैनेजमेंट एंड वी एड्रेस दोज चैलेंजेस अगर कुछ भी होते हैं. प्लस उसके अलावा हमने प्रोग्राम्स लाइक लॉट आउट प्रोग्राम इज वन ऑफ द ह्यूज सक्सेस. द होल आइडिया इज पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि किसी वजह से काम छोड़ देती हैं, जॉब से बाहर हो जाती हैं और फिर बाद में चाहती हैं, देन दे वांट टू जॉइन. तो उस प्रोग्राम को हमने कहा है कि लॉट आउट, बिकॉज़ लॉट ऑफ कंपनीज डोंट गिव देम अपॉर्चुनिटी कि जी आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. बट वी केम अप विद दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम कॉल्ड लॉट आउट, जिस पे हमने ऑलरेडी 2 फीमेल्स को ऑनबोर्ड कर लिया है. ग्रेट. एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में वी विल डू मोर एज वेल. सो दीस आर जस्ट कपल ऑफ थिंग्स. इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी रिलेटेड थिंग्स हैं. CSR कंट्रीब्यूशन बाय सिंजेंटा. वैसे तो आप तो जो काम कर रहे हैं वो भी एक CSR ही है, because you are dealing with the underprivileged people ना. तो कोई CSR major initiatives लेती है Syngenta global and then Syngenta Pakistan. CSR में बिल्कुल we do a lot of things. So अभी बड़ा recent बताता हूँ तो unfortunately floods वगैरह है पाकिस्तान में. आपको तो उड़ गए, सारी crops उड़ गए. 50% cotton was gone. 50% का बड़ा cotton across Pakistan was gone. So हमने किया ये कि वी पार्टनर विद द लोकल NGO. उनके साथ हमने पार्टनर करके एक तो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव की, वो दैट्स समथिंग वी डिड. सेकेंडली हमने किया ये कि अपनी सेल्स फोर्सेस को रादर देन सेइंग कि यार अब जो बच गया उन पर जरा फोकस करो, हमने कहा कि नहीं वो तो ठीक है लेकिन जिनका नुकसान हुआ है गो टू देम, टॉक टू देम इमोशनली. माइट बी देयर इज अ वे आउट. इमोशनली बी विद देम, यू नो, जस्ट मोटिवेट देम. एंड लास्टली हमने व्हीट और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर हमने प्रॉपर रिलीफ पैकेजेस निकाले. ये तो बहुत अच्छा. उसमें बेसिकली उनको थोड़ा मॉनेटरी रिलीफ भी मिला, डिस्काउंट भी मिला. तो ये हमने फ्रॉम अ CSR पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ फ्लड्स के लिए किया. अभी हमने एक और भी पार्टनर विद TCF, इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे आगे. और उसके तहत हम वी विल बी स्पॉन्सरिंग वन ऑफ द स्कूल्स इन द रूरल एरिया जो कि पूरे साल के लिए भी स्पॉन्सर. वेरी गुड, वेरी गुड. योर फोकस ऑन यूथ एंड देन वुमेन यू सेड ना. ओके, नाउ यू टेल मी अबाउट यू स्विचिंग फ्रॉम service industry to manufacturing. How was that? कहाँ Deloitte, कहाँ Karim, and now पक्की वाली जिसे कहते हैं ना labor intensive fertilizer industry. How's that?
देखिए जी, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू लेट्स पुट इट दिस वे. कंसल्टिंग में मैं जब था तो आई डिड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सो आई ऑलवेज न्यू अबाउट द इंडस्ट्री, थोड़ा चैलेंजेस वगैरह बता थे. बट यस, करीम से इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. बट आई थिंक कुछ प्रिंसिपल्स हमेशा कॉमन रहते हैं. सो फॉर एग्जांपल, you know, believing in a certain mission and purpose, you know, building a team of amazing talent, ठीक है, and then really solving local issues. So I think ये 3 principle अगर आप करीम पे उठा के लगाएं तो वो भी applicable थे. आज मैं Syngenta पे लगाऊंगा तो Syngenta में भी ये 3 principles are very much applicable. So a lot of similarities but a lot of differences as well. Where do you see Zeeshan 5 years down the road? अच्छा, 5 years down the road, probably you know, personal in the agriculture sector. For sure. And now you're loving this manufacturing and this sector. So Pakistan में रहना है तो this is the biggest sector. And generally, you know, I see myself कि Syngenta को एक household name भी बनाया हो, Pakistan Syngenta को. Secondly, in some capacity, if I can help government to advise them on what. Great. And you know, there's always possibility कि multinational है तो regional moves भी होती हैं, international भी होती हैं. So I wouldn't mind कि अगर 5 साल बाद में उस. So I can see the book here. No rules. So you fond of reading? I try to. अच्छा. वो मसला ये होता है कि बुक पढ़ना शुरू करता हूँ, बीच में फिर कमिटमेंट्स आ जाती हैं, फिर वो आधी रह जाती है और फिर वो आपको रिकनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. बट your 2 favorite books which you think your all time favorite? अच्छा जी, 2 बहुत अच्छी हैं. एक तो है Good to Great. It talks about set of companies जो कि which are very very purpose driven and how they were turned around. So conclusion उसका ये है कि purpose led companies are there forever. ठीक है, and they will continue to do well. Who are not only looking at numbers and 2 + 2 कितना profit हुआ. Purpose is there तो फिर. Number 2? Number 2 जो है नेवी सील्स के ऊपर एक बुक थी, मुझे बुक का बिल्कुल नाम ज़हन से निकल गया, बट बेसिकली इट वाज अबाउट नेवी सील्स एंड इट वाज प्योरली अबाउट कि उसमें हाउ डू दे वर्क इन टीम सेटिंग, राइट. सो इट टॉक्स अबाउट, वो एक्स नेवी सील्स हैं यूएस के, उन्होंने वो बुक लिखी थी ऑथर्स ने, बट बेसिकली टॉक्स अबाउट सर्टेन प्रिंसिपल्स जो कि नेवी सील्स में फॉलो होते हैं और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी. एनी बुक अदर देन कॉर्पोरेट? कोई आपने कोई और किताब पढ़ी हो कॉर्पोरेट के अलावा? ट्रैवल में पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शौक है मेरे पास, बल्कि वो 1-2 बुक्स भी हैं पूरी पाकिस्तान की ज्योग्राफी के ऊपर, बल्कि पाकिस्तान में विजिट भी करते हैं तो आई गिव देम दोस बुक्स. सो आई थिंक वो यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री, geography, you know, especially about Pakistan, I think that is something which is your 2 best season on Netflix or any 2 movies which you would like to recommend to others. मैं honestly बहुत ही बुरा हूँ Netflix की सीरीज फॉलो करने में. Every night I film देखते होंगे? फिल्म वगैरह बिल्कुल देखता हूँ, लेकिन I think टॉप फिल्म अगर Netflix में बात करें तो मुझे नहीं not Netflix, general level. मूवीज में एक तो टॉप गन, such a boy बचपन से you know, such a boy sort of movie. I'm a son of an Air Force officer as well, तो वो हमेशा से you know planes and everything, so वो टॉप गन वो बड़ी अच्छी लगी. फिर एक वो आर्मी की परिस्थिति है, सेविंग प्राइवेट रायन, वो बड़ी अच्छी, it was a very good movie. So I think ये these 2. Zeeshan's 2 hobbies, क्या शौक है? Hobbies, I'm passionate about tennis. अच्छा. तो वीकेंड में तो एवरीबडी नोज कि शाम को से टेनिस खेलनी है, तो ना मैं को फोन उठाऊंगा उस टाइम, ठीक है, ना मेरे घर वाले कोई प्लान और बनाएंगे. एंड सेकंडली ट्रैवल एंथुसियास्ट, आई हैव दोस एडवेंचर बाइक्स जो बड़ी बड़ी आपको नजर आती है बाइक्स. सो मैं आई ट्रैवल अक्रॉस पाकिस्तान, सो आई हैव गॉन टू तकरीबन कारगिल तक मैं गया हूं बाइक पे. आई हैव गॉन टू हाउ लॉन्ग मल्टीपल टाइम्स. अब मैंने जाना है गवादर इंशाल्लाह. गवादर बिल्कुल. कितने दिन लगेंगे? So कराची तक बाइक हॉल कराएंगे, उधर से आगे राइड करके जाएंगे. 4-5 डेज का प्लान. 4-5 डेज. आप हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, ज़ीशान? अच्छा, ये मजे की बात है कि मेरी 2 हॉबीज मैंने बताई है ना, दीज आर आल्सो माय बिगेस्ट स्ट्रेस रिलीवर. एक तो ये 2 हैं. उसके अलावा जाहिर है स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, पेरेंट्स, बच्चों के साथ, दैट इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस रिलीवर एज वेल. बट यूजुअली अल्लाह का शुक्र है, होता ही है कि मेरा, क्योंकि कंसल्टिंग यूजुअली जब मैंने शुरू किया था करियर अपना, कंसल्टिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स, राइट. बड़ा स्ट्रेस होता है. आप किसी की इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उसी को उसके बारे में बता रहे हैं कैसे बेहतर करना, ठीक है, तो बड़ी आपकी ग्रिलिंग भी होती है, बड़े स्ट्रेसफुल टाइम से भी गुजरते हैं. बट समहाउ आई हैव दिस एबिलिटी कि जो ऑफिस का स्ट्रेस होता है ना, मैं उसको घर नहीं लेके जाता ऑफिस, और मैं ना घर वालों से जिक्र करता हूँ और ना उनको ज्यादा शो होता है कि कोई. Why you are successful? 2 tips which you think that okay they made. देखें, अभी सक्सेसफुल तो मैं नहीं कह सकता कि हो या ना, your recipe of success.
But my definition of success is that, if I'm able to do something big for Pakistan and agriculture sector in specific, and most importantly, if I can be a good human being, जिससे मेरी वजह से किसी और को भी फायदा हो. So I think that's my definition of success. What is happiness for you? Happiness is, being with my family, fulfilling my hobbies, and doing something really good for underprivileged segments, especially these are farmers. So doing something good that makes me happy as well. Your message of hope and optimism for youth. So many people would like to be Zeeshan, especially young बच्चे. बहुत सारे मेरे ख्याल में लम्स में आपकी स्टोरी भी बड़ी पढ़ाई जाती होगी अब. तो they look up at you ना. तो what's your message of hope and optimism for them? अच्छा जी, यूथ के लिए तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़ाहिर है इट्स गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्बुलेंस, राइट, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी. बट हर मुल्क के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं. अगर आप बाहर भी जाएंगे, किसी डेवलप कंट्री में जाएंगे, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो जहाँ तक पाकिस्तान की बात आती है तो मेक श्योर कि कहीं बाहर आप जिन मौका मिलता है जाने का, तो नेवर टॉक बैड अबाउट योर कंट्री, क्योंकि हर घर में मसले मसाइल होते हैं. सो बी प्राउड ऑफ योर कंट्री बिकॉज दिस इज आवर आइडेंटिटी. और ट्रस्ट भी, आपके पास कोई पासपोर्ट वगैरह भी बाहर का आ जाए, यू विल ऑलवेज बी पाकिस्तानी एट होम. सो मेक श्योर कि एक तो नंबर वन कि यू आर ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह हम टफ टाइम से भी निकलेंगे. एंड सेकेंडली आई थिंक देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस, राइट. सो प्रोफेशनल करियर्स में या पर्सनल लाइफ में भी धक्के भी पड़ते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स भी आते हैं, बट आई हैव consistently seen people who were hardworking and persistent, right? So they've done really well, and they've come out of all kinds of challenges as well. So I think वो belief बड़ा strong होना चाहिए. Hard work, persistence, and most importantly, your identity is Pakistan. So remember that. Thank you so much, Zeeshan. It was an amazing experience. और कुछ चीज़ें I really have learned a lot from you. Number one is your confidence. I can see that how confident you are. Number two is your commitment to your industry. You are in this agricultural industry, and then you see yourself, not only your company, but yourself in the longer run as well. Okay. And number three is your, whenever you talk about your team, you always talk about developing your teams and stuff. So I really wish you good luck. आप इसी तरह लोगों को मज़ीद सीखते रहे, सिखाते रहे, और so that we can have more Zeeshans leading multinationals. And I wish कि like our neighborhood India, I would like to see some of my CEOs ruling internationally as well. हमें जल्दी पता चले कि आप भी किसी मल्टीनेशनल को ग्लोबली हेड कर रहे हैं, आप या हमारे और CEOs भी. Thank you so much. और इंशाल्लाह you can watch this episode on CA Today TV, or if you are having any success stories like Zeeshan, do get back to us. Thank you.